कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होती है इसका एग्जैक्ट टर्म, इसका एग्जैक्ट एक्शन क्या रहता है? Women's safety has become very important in all the organization. And as a woman, I will always say that when I feel safe in any environment, then I also feel like I am being respected. अगर देखा जाए तो हमारे समाज में हम लोग महिला ऐसी महिलाएं होती है कि हमको हमारी चुप्पी नहीं तोड़नी रहती है। वुमेन की भी एक जो ज़रूरियात है अपने घर के लिए, वही वो एक समाज के लिए भी ज़रूरी है। तो आपकी जो कंपनी है वो किस हिसाब से दूसरे जो कंपनी जिनको पॉश कराना है, कॉर्पोरेट्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, so how you support them? There are 19 labor laws which we explain to the client and we help them. कंपनियों का समाज का फ़ायदा हो, जो सस्टेनेबल हो, हम वो सोल्यूशन देना चाहते हैं। Did you know more than 1 in 3 women in their career faces workplace harassment, and many of them don't report it. In India, POSH Act was introduced to create safer environment for their employees and also to protect employees from the harassment. Companies with 10 or more employees are required to have internal complaint committee, but still the awareness is very low. Today we are going to talk about POSH, what it really means, why it matters, and what every employer and employee should know. So today we are joined by Dr. Rita Savla and Dinah Satak, and we are going to discuss about why POSH is important and why POSH awareness is mandatory. And this is Uninfluencer Podcast. Let's get into it. Let's welcome Dr. Rita Savla and Dinah Satak ma'am on Uninfluencer. Thank you, Amrita, for inviting here today on this platform of the Uninfluencer. And we are really thankful and grateful to you to invite us over here. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, Amrita ji, for inviting us for the Uninfluencer podcast. It will be our pleasure to talk on the topic. Thank you for the. I think topic is very much it's not a normal topic. It is everyone wants to talk about this topic, but no one is talking because everyone has some shame or some kind of a what you can say घबराहट भी महसूस होती है कि कैसे इस टॉपिक के बारे में बात करूं. That is a posh, right? So I want to talk about why posh is mandatory in all the corporate, hospital, school. Why is it so? So we will start with this one important question. So I'll answer to you. So women's safety has become very important in all the organization, not only in companies or factories, but even in schools, hospital. So women should be given that pride and that safety to work and to run her family. Basically, woman comes out of the house because she has to support her family, grow her family, so that is what it's in her mind. But if she's not given that safety, then it is a problem for her, for the family and the society also. So that's why this act is being implemented by the government for everyone, to bring awareness to everyone about women and her safety. Right. So, ma'am, you want to highlight something? Absolutely. Today, when woman comes out of the home and when a secured environment is given, then she can give you 200%. But when she is not feeling safe and secure, her ability to give becomes so less. And then it's organization which suffers. And as a woman, I will always say that when I feel safe in any environment, then I also feel like I am being respected. Then it's become my duty, though I'm supporting, I come out the home to support my family, to support the growth of the family. So indirectly, I'm supporting the economy of the country, growth of the country. Exactly. And if I'm not given that safety and security and the respect, how one expect that I can give you my 100%? So it's very important. Any woman, when she's coming out of the home, हम ऐसे ही बाहर नहीं निकले हैं.
वुमेन की भी एक जो ज़रूरियात है अपने घर के लिए, वही वो एक समाज के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम समाज का एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखना चाहते हैं, भारत अगर हम सुपर पावर देखना चाहते हैं, तो पॉश एक्ट जैसे एक्टों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ छोटी-छोटी गलतियाँ अनजाने में की ही या जानबूझ के की, दोनों ही परिस्थितियों में जब स्त्री को लगता है कि नहीं मैं इस जगह पे मैं सेफ नहीं हूँ, तो अगर ये पॉश एक्ट समझ ले, उसका इम्प्लीमेंटेशन समझ ले किस तरह से करना है, तो जानबूझ के या अनजाने में जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती है, वो गलतियाँ रोकी जा सकती है। तो प्रिवेंशन, पॉश एक्ट बोलता है कि पहले प्रिवेंशन पे काम करेंगे, तो ये प्रिवेंशन करने की बातें कर रहा है ताकि वो हुई ही नहीं। फिर अगर एक्ट का समझ आने के बाद अगर कोई करता है तो अनजाने वाली बात रहेगी ही नहीं, सिर्फ जानबूझ के किया वो वही बात रह जाएगी। अनइंटेंशन एंड इंटेंशन की जो बात करते हैं, तो ये पॉश एक्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आपके पास एक महिला काम करने आ रही है, तो आप उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट दीजिए, तो देखिए वो आपकी कंपनी को कहाँ लेके जाती है। But still I can say there is this area is very underrated. Yes, Yes, it's a very true. gray area. No one is talking about, but yes, I want to talk more about कि ये खाली महिलाओं के लिए है या सबके लिए है, कैसा है एक्ट, क्या बोल रहा है? एक्ट प्राधान्य से महिलाओं के लिए ही बात करता है। पॉश एक्ट इज अ सेक्सुअल प्रिवेंशन, महिलाओं के लिए है, रिड्रेसल एंड एक्शन के ऊपर बात कर रहा है। बट जब एक्ट हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो अगर कोई महिला ने गलती जानबूझ के किसी पुरुष को टारगेट किया है, तो वहां पे पुरुष को भी प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि जब केस का सुनवाई होगी, इंटरनल कमिटी जो केस को इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है जो केस के ऊपर काम करेगी, तब वो पुरुष को भी न्याय मिलेगा। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते सिर्फ महिलाओं के लिए, अगर महिला ने कंप्लेंट कर दी तो बस महिला ने कंप्लेंट की है तो उसी की सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी तटस्थ रूप से काम करेगी और वो जो सही है उसके पक्ष में न्याय देगी। तो पनिशमेंट होगी वो दोनों के लिए इक्वली। अगर किसी ने गलती से जानबूझ के अगर पुरुष को टारगेट बनाया है, तो वहां पे न्याय होगा पुरुष के लिए। तो ये सिर्फ मिथ है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये न्याय की बात कर रहा है। और ये न्याय वो पहले एक्ट बता रहा है कि कंपनियों ने अपने अंदर ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर और आगे बहुत सारे गवर्नमेंट की एजेंसीज है, जैसे पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, नेशनल वुमेन राइट्स के वहां पे कमेंट कर सकते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स में कमेंट कर सकते हैं, वो अलग अलग जगह पे कमेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। बट पहले ही कंपनी के अंदर अगर ये रिजॉल्व हो जाए, तो पुरुष के लिए अगर एक्ट है तो सिर्फ पुरुष ही टारगेट होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों को ही न्याय मिलेगा। तो ये समानता के हिसाब से Absolutely. मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट को या बनाया गया है। क्योंकि हमारा वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमारा भारत का संविधान है ना, इक्वालिटी पे बात कर रहा था। इक्वालिटी फॉर मेल एंड फीमेल इक्वल थी। और जब विशाखा गाइडलाइंस आए तो वहां पे कहीं लगा कि ये इक्वालिटी की जगह पे अगर एक्ट बन जाएगा, तो इसीलिए 2013 में एक्ट आ गया, ताकि भले वो महिला प्राधान्य है बट न्याय करेगा तो दोनों को न्याय मिलेगा। परफेक्ट। सो मैम, आई जस्ट वांट टू नो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होती है, इसका एग्जैक्ट टर्म, इसका एग्जैक्ट एक्शन क्या रहता है? सो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि किसी ने कोई शब्द से, एक्शन से, या देखने से, या प्रपोजल से, अगर किसी ने कहा, एक एग्जाम्पल है कि किसी ने किसी को बोला कि कोई दोस्त एक दूसरे को बोलेगा कि तू बहुत सेक्सी दिखती है, किसी थर्ड पर्सन को ये बोला तो ये गलत हो गया। कोई बॉस ने बोला कि तुम मेरा प्रमोशन चाहिए या तुम्हारा एडिशनल पर्क चाहिए, तो तुम मुझे कुछ क्या सेक्सुअल फेवर कर सकती हो। या किसी ने उसकी कैरेक्टर के बारे में गॉसिप करना शुरू किया और ये देखा उसका और उसके साथ कुछ चल रहा है। ऐसे सिंपल बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसको सेक्सुअल हैरेसमेंट बोल सकते हैं,
किसी ने स्टेयर करना शुरू कर दिया किसी लड़की को, कंटिन्यूस देख रहा है, जो लड़की को अनकंफर्टेबल करता है। लड़की मतलब कोई भी उम्र की महिला। तो एक्ट बहुत सिंपल बोलता है, देखने से, शब्द से या एक्शन से किसी ने हाथ रख दिया, वो महिला के लिए अनकंफर्टेबल है। लेकिन इसके बाउंड्रीज क्या बोलते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो हमारी दोस्ती रहती है पुरुष मित्र से वो चल जाती है कि लाइक हम लोग ने चला लिया वो बाउंड्रीज हमारा, बट लेकिन हमको कैसे पता चलता है कि लाइक हमको ये दर्ज करवाना है, इसका कंप्लेंट करना चाहिए? बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारे समाज में हम लोग ऐसी महिलाएं होती है कि हमको हमारी चुप्पी नहीं तोड़नी रहती। अगर महिला के साथ कंपनी में कुछ होता है, संस्था में कुछ हो गया, तो वो इंटरनल कमिटी के पास पहले जाएगी और वहां पे उसको अपनी कंप्लेंट का कोई जवाब मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा। तो सरकार चाहती थी कि अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है तो वो पुलिस में जाए फिर या कोर्ट कचहरी में जाए, उससे अच्छा है कि उसी की संस्था में उसको पहले न्याय मिल जाए। तो इसीलिए पॉश एक्ट बनाया गया और उसकी जिम्मेदारी अलग अलग छोटी छोटी संस्थाओं में कि आप पहले अपनी तरफ से ही निपटा लो कंप्लेंट और अवेयरनेस करो, ताकि पुरुष ये करने से पहले सोचे कि मेरे सामने यहाँ पे अभी पॉश कमेटी है तो यहाँ पे कंप्लेन हो जाएगी। पहले महिलाओं को लगता था पुलिस में जाऊंगी या कोर्ट कचहरी जाऊंगी, घर वाले सहयोग देंगे नहीं देंगे, मेरे ऑफिस में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक जो बड़ा डर लगा रहता था कि मेरे लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे ऑफिस में मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा जॉब लॉस हो सकता है। और पहले ऐसा होता भी था कि अगर कोई महिला आगे आके कुछ बात करती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तो लोग उसी को बोलते कि तू ही गलत होगी। कोई इन्वेस्टिगेशन ही प्रोसेस ही नहीं थी। और उससे पहले वो पुलिस में जाए, पुलिस भी पहले महिलाओं के लिए वहां पे इतने सारे केसेस है कि वो महिला को कितना न्याय मिलेगा, फिर वो कोर्ट कचहरी में जाएगी, वहां पे तो हमें पता है कि हमारे कोर्ट कचहरियों में कितने सारे लंबे समय तक केसेस चल रहे हैं। तो एक रेप केस है, जो महिला के ऊपर किसी ने अगर रेप कर दिया, वो एक छोड़ के छोटी ये जैसे कि वर्बली किया है या सेक्सुअल फेवर मांगा है या कोई कमेंट कर दिया, गलत तरीके से हाथ रख दिया, गलत जगह पे हाथ रख दिया, स्टेयरिंग कर दिया, छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बातें ही है। बट रेप के अलावा की हर एक कंप्लेन आप पहले इंटरनल कमेटी में कीजिए। रेप एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, उसके लिए इंटरनल कमेटी डायरेक्टली पुलिस कंप्लेन की बात करेगी। तो ये रेप के अलावा की जो भी कंप्लेन है उसके लिए महिला को पुलिस या न्याय में न जाने के लिए, कोर्ट कचहरी में न जाने से पहले यहाँ पे उसको न्याय मिलने की एक व्यवस्था पॉश एक्ट के अंदर की गई है। और मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा चीज गवर्नमेंट ने लाया है, बिकॉज इस चीज से एक तो मैं जो आप बोल रहे वही चीज दोहराना चाहूंगी कि महिलाओं की चुप्पी भी तोड़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सहजकता से बहुत हम लोग नरम दिल बोलते हैं, महिलाओं का दिल बहुत नरम रहता है, तो हम लोग फटक से बोल नहीं पाए। मतलब हम लोग मतलब जो बोलने वाले हैं बोलेंगे, बट देर आर पीपल, देर आर वुमेन हु कैन नॉट स्पीक दैट मच डायरेक्टली। दूसरी बात ये है, कंपनी की भी पॉलिसीज के हिसाब से कंपनी की भी इज्जत जा सकती है, मार्केट में उनकी इमेज जा सकती है। सो आई थिंक दिस द thing they have implemented altogether. The law basically has secured the women also, plus it has even secured the industry also. Absolutely. ताकि किसी इंडस्ट्री के ऊपर कोई ऐसे लालचन नहीं आए, ताकि उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसका प्रोडक्टिविटी है उस पे आँच आ जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि लोगों को तो उठा के रखने में तो टाइम नहीं जाता है, यही मीडिया होगी वो कहीं कहीं पूरी जगह पे वो फैला देगी, एंड द कंपनी विल सफर, द वुमेन विल सफर। सो इन सबको सिक्योर करने के लिए ये एक्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, थिंकिंग अबाउट वुमेन एज वेल एज द इंडस्ट्री एंड एग्जैक्टली। और इससे ये भी एक फायदा होगा कि जो महिलाएं, हमें कहीं से बचपन से सिखाया गया था कि पुरुष अगर हमारे साथ कुछ करता है तो हमें बोलना नहीं है, क्योंकि कहीं आपने जैसे कहा कि हमारी इज्जत कैसे हो जाएगी, लोग हमारे सामने कैसे देखेंगे कि यही गलत होगी, इसी ने कुछ इनिशिएट किया होगा।
बट यहाँ पे न्याय की प्रक्रिया बना दी कि आप कंप्लेन करो, इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो इन्वेस्टिगेशन कहीं पे पुरुष के लिए है कि फेवर में जा रहा है, क्योंकि कंपनी शायद ये देखे कि ये पुरुष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ज्यादा बिजनेस ला रहा है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो अन्याय ना हो इसीलिए एक एक्सटर्नल के मेंबर भी बिठा दिया जो सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, एनजीओ चला रहा है, ताकि वो न्याय की प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि वहां पे कोई सोशल वर्कर है वो जनरली न्याय की बातें करते हैं, एडवोकेट है वो न्याय की बात करेगा। तो पॉश एक्ट गवर्नमेंट ने इस तरह से बनाया कि वो महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी, क्योंकि कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि महिला और पुरुष, जो हमारा संविधान, हम जब भारत देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान में इक्वालिटी की बात की थी, वो इक्वालिटी तभी हो सकती है कि हम महिलाओं को भी उतना ही हक दें और पुरुषों को भी उतना ही हक दें, कि कोई गलत एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर ना करे और कोई गलत बातें भी ना करे कि जो सामने वालों को अनकंफर्टेबल करे। अगर कोई महिला भी पुरुष के बारे में बोलती है कि तू बहुत ज्यादा सेक्सी है, तो पुरुष भी अनकंफर्टेबल हो सकता है, या उसके बारे में गॉसिप कर सकती है, तो वो उसकी भी इमेज खराब हो सकती है। कि अगर कोई महिला स्त्री पुरुष का अफेयर की बातें चलती है, तो पुरुष के फैमिली मेंबर पे भी, उसके ऊपर, उसकी फैमिली पे भी उसका इक्वली इम्पैक्ट होता है। जैसे हम स्त्री के फैमिली के ऊपर या स्त्री के उसकी कैरेक्टर के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, उतना पुरुष के ऊपर भी होता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को न्याय देने के जो सोच में पुरुषों को भी न्याय की बात आ गई है। दोनों को अपनी लिमिटेशन बताई गई है और दोनों को ही बोला गया है कि आप खुल के बात कर सकते हो। भले ही पॉश एक्ट में अगर पुरुष के साथ कुछ होता है, अगर पुरुष के साथ कोई महिला अभद्र व्यवहार करती है, कुछ गलत काम करती है, तो वो पॉश की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बता सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एफआरआई करे, वो चुप रहे। तो अन्याय तो दोनों के साथ होता है, समाज है, अच्छे बुरे दोनों है, महिलाएं भी अच्छी है, पुरुष भी अच्छे, महिलाएं भी बुरी है, पुरुष भी बुरे है, तो इक्वल समाज है। बट कहीं ना कहीं एक्ट की वजह से बैलेंस लाने की कोशिश की गई है कि समाज, स्वस्थ समाज की हम कैसे निर्माण कर सके। इक्वालिटी स्वस्थ समाज की बात करता है। जब समाज स्वस्थ होगा, सोच अगर सही होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा, और देश को आगे बढ़ाना है दोनों को ही सिक्योर करना पड़ेगा। तब हम ऐसे बोलते हैं कि पॉश एक्ट महिलाओं के लिए है, बट वो न्याय तो दोनों को देता है। मैम, ये पॉश एक्ट जो है वो कंपनियों के लिए क्यों जरूरी बन गया? व्हाई इट इज सो मैंडेटरी? सो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया है। बेसिकली जैसे हमने कहा कि वुमेन्स के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन ये जो है गवर्नमेंट ने बेसिकली सभी इंडस्ट्रीज के लिए इसलिए किया है ताकि सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, जैसे कि पॉश एक्ट में काफ़ी चीज़ें हैं। इफ़ यू डोंट फॉलो द पॉश एक्ट, तुमको 50,000 का पेनाल्टी लग सकता है, या फिर इवन इम्प्रिजनमेंट लग सकता है। ऐसे स्ट्रिक्ट कायदे किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि तुम इम्प्लीमेंट करो और हर एक को अपना सेफ्टी दो, हर एक लोगों को सेफ्टी दो वर्क प्लेस पे। तो ये रीज़न है कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। एंड जो अपने को मैंडेटरी बनाया है, अभी तो गवर्नमेंट ने दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर इंस्पेक्टर्स, जिन्होंने भी पॉश कमेटी की है उनके हम लोग फाइलिंग करते हैं, रिटर्न फाइलिंग्स वगैरह। तो हर एक के ऊपर अभी इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो हर एक इंडस्ट्रीज में वो लोग फॉलो अप करके देखने वाले कि पॉश एक्ट एक्चुअली, इंस्पेक्शन हाँ, तो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जस्ट नाम के लिए डाला हुआ है। सो दिस ऑल चेकिंग इज गोइंग टू बी हैपन बाय द गवर्नमेंट। वो अभी इम्प्लीमेंट चालू किया है उन्होंने। इसका कुछ ये है कि लाइक इफ देयर आर टू एम्प्लॉइज, इफ आई एम मैं, अगर मेरा कंपनी है, मेरे पास 2 एम्प्लॉई है, तो मैं उनके लिए भी पॉश एक्ट कर सकती हूँ, कैसे? नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि 10 एंड मोर एम्प्लॉयज जब रहते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एम्प्लॉय, तो वहां पे ये मैंडेटरी किया हुआ है। उसके नीचे भी रहेंगे तो भी यू कैन गो विद द एक्ट। ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, बट देन यस, टू सेफगार्ड योर स्टाफ, टू सेफगार्ड वुमेन, you can definitely go into this act. So 10 and more it is employees. mandatory. Yes, mandatory. और इसमें 10 एंड मोर मैंडेटरी में 10 नंबर कैसे होता है कि अगर आपके पास कोई महिला टेम्पररी आ रही है, 2 घंटे के लिए आ रही है, जैसे कि हमारे पास स्वीपर आ गया, लीबर आ गया, ऐसा, या तो फिर इंटर्न्स आए हैं,
तो ये भी आपके स्टाफ में काउंट हो जाते हैं। उनको भी इंक्लूड हाँ, किया उनको भी जाता है। इंक्लूड किया। कोई कंपनी है तो- कि हमारे पास डेली वेजर्स आते हैं, जब भी हमारे पास जरूरत है तो हम उनको बुलाते हैं, तो उसके वहां पे अगर वो 10 काउंट होता है गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम कि महीने में 4 दिन ऐसे होते हैं कि मैं 5 लेबर को बुलाता हूँ, तो उसमें महिला भी है, तो फिर वो 10 काउंट हो रहा है। अगर आपके पास 5 एम्प्लॉय है जो आपके पे रोल पे है और 5 एम्प्लॉय आपके पास डेली वेजर्स करके आते हैं, महीने में 4 बार आते हैं, 10 बार आते हैं, या आप बोलते हैं कि ये मेरी डेली एम्प्लॉय में नहीं, एम्प्लॉय शीट में है, बट इसको तो मैं, मेरी स्वीपर आती है तो उसको तो मैं कैश 200-500 जो भी है वो दे देता हूँ, बट वो आती है तो वो एक मेंबर काउंट हो जाती है। तो इस तरह से 10 का नंबर इज नॉट ओनली फॉर द पे रोल। कोई अगर टेम्पररी भी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, 1-2 घंटे के लिए भी आ हाँ, रहा है काम करने के लिए, वो भी हाँ, काउंट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, या फिर इंटर्न्स है, ये सारे लोग आपके पॉश एक्ट के अंदर 10 के काउंट में आते हैं। तो अगर आपका पे रोल पे 10 नहीं है, इसका मतलब आप पहले ध्यान दीजिए कि ये पे रोल कैसे 10 है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। राइट। और एडिशनली मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपके पास 10 एम्प्लॉय नहीं है बट एक महिला काम करती है, तो आपको ये पॉश एक्ट की एटलीस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम तो कर ही लेना चाहिए, ताकि वो महिला को अपनी सुरक्षा के बारे में पता चले, पुरुषों को पता चले सही या गलत क्या बिहेवियर है जो महिला को अनकंफर्टेबल कर सकता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। Really, I'm glad actually कि you two super women are working for this Posh Act. तो आपकी जो कंपनी है वो किस हिसाब से दूसरे जो कंपनी जिनको पॉश कराना है, कॉर्पोरेट्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, सो हाउ यू सपोर्ट देम ऑल टुगेदर? तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं ये आईसी कमेटी फॉर्म करने के लिए। फिर मेंबर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, आईसी कम्युनिटी को भी ट्रेनिंग देते हैं। फिर हम उनके रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, लॉज बाय लॉज के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड है वो बनाते हैं। देन हमारी एक्सटर्नल जो मेंबर होती है वो भी हमारे में से डॉक्टर रीटा है, वो हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो खुद एनजीओ चलाती हैं। तो हम हमारे पास जैसे पूरा सोल्यूशन है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ईयरली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, तो वो पार्ट मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो वी गिव कंप्लीट सोल्यूशन टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इट हेल्प्स के वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है इंडस्ट्रीज को, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग हेल्प करते हैं। वेरी नाइस। हाँ। तो हम इंडस्ट्री से कहना चाहते हैं कि पॉश एक्ट की जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ दीजिए, और हम आपके लिए आपकी टीम को एक स्ट्रांग टीम बनाते हैं, जहां महिलाओं भी सुरक्षित है, पुरुष भी सुरक्षित है, और हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रोथ हो। सो मैम, आपका एक्सपीरियंस पॉश में दोनों का बहुत ही ज़्यादा रहा है। सो just I would like to listen, or our viewers would like to listen one case which you have handled, कि एकदम ऐसा केस जो आप बता सकते हो आराम से सबको। एक ऐसा केस था, बहुत इंटरेस्टिंग केस था। ऐसे लगता था बहुत ज्यादा कैजुअल था, इसकी कोई सीरियसनेस नहीं, कि दो साथ में बैठने वाले, दो साथ में टेबल में बैठने वाले, दोनों साथ में खाना खाते थे, लंच करते थे, अदरवाइज उन लोगों का कुछ नहीं था। मेल एंड फीमेल वो। मेल एंड फीमेल। तो वहां से गॉसिप शुरू हुई, गॉसिप बढ़ते बढ़ते पूरी ऑफिस में पता है इन दोनों का अफेयर चल रहा है। महिला मैरिड थी, वो लड़का अनमैरिड था। तो कहीं महिला को पता चला और कहीं पे ये बात उसके घर पे गई। जब महिला के मन में ये था, ये सिर्फ हम साथ में खाना, दोनों साथ में बाजू बाजू में टेबल था और दोनों साथ में खाना खा रहे थे, उससे अलावा उनका कोई रिश्ता नहीं था। जब हम खाना खाते तो एक दूसरे का खाना शेयर भी करते हैं, वो उतनी ही प्योरिटी थी उन लोगों के। लेकिन फिर जब महिला को पता चला उसके घर में कहीं पे वो गॉसिप चली गई, तो उसने फिर कंप्लेन किया, और उस कंप्लेन में जो पता चला कि वो लड़का का प्रमोशन की बातें हो रही थी, तो 2 एम्प्लॉय में से किसको चूज करना चाहिए। तो वो चूज में वो लड़के ने, जो दूसरा एम्प्लॉय था, कि मुझे, उसको शायद कहा था कि मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसने वो पूरी गॉसिप फैलाई थी। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वो गॉसिप कहाँ से शुरू हुई थी, और उसके बाद में जिस तरह से उनके बायलॉज में लिखा हुआ था उसी के हिसाब से वो पनिशमेंट हो गई। फॉर्चुनेटली जो लड़का था, वो लड़की के घर वालों को भी सच पता चला, तो उसके घर में जो स्ट्रेस था वो चला गया।
प्लस वो लड़के को भी न्याय मिला कि उसको प्रमोशन मिल गया। राइट। तो ऐसा दोनों को ही, जब आपका पहले प्रश्न था कि ये महिला की प्रतिका सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष को इससे कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों को न्याय मिला। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, इसमें से ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग केस इसलिए लगता था कि ये पुरुष और महिला दोनों को किस तरह से न्याय मिलता है। करने वाला कोई थर्ड पर्सन था, फिर उसको पनिशमेंट हुई, उसके बाद में जो कंपनी ने किया वो तो शेयर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक ऐसा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस था, सिर्फ गॉसिपिंग हो रहे थे उसके अंदर और कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा रहता है ना कि ऑफिसेस है, पॉलिटिक्स तो होता ही है। हाँ। और पॉलिटिक्स के मामले में पॉश जैसे जो एक्ट है वो क्या है, पॉश जैसे जो चीजें हैं वो सामने आती है वो पॉलिटिक्स की वजह से ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लोगों को भी अच्छा कंफर्टेबल लगता है, बट महिला इतनी कंफर्टेबल रहती है क्या बात करने के लिए? वो जब महिला हमारे पास आई थी, तो उसका ये कहना था कि जब मेरा और उसका कोई अफेयर नहीं है तो लोग इसके ऊपर कहाँ से शुरू हुआ। आई वांट टू नो कि किसने शुरू किया, बिकॉज इससे मेरा कंटिन्यूस वो स्ट्रेस रह रहा है कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप, फिर वो दोनों अलग से बात करना बंद कर दिए थे। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे तो कहीं ना कहीं बातें करनी पड़ती थी, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोनों के काम पे भी हो रहा था। उसके ये महिला के घर पे हो रहा था, लड़का तो अनमैरिड था तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ये मैरिड फीमेल थी। तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह पे होता है, बट ये ऑफिस पॉलिटिक्स को पॉश के अंदर किस तरह से देखा गया और उसके ऊपर से दोनों को न्याय मिला। और ये पता चला कि आप गॉसिप पॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके से भी खेल सकते हैं। किसी महिला को बदनाम करना या किसी पुरुष को बदनाम करके पॉलिटिक्स खेलना बहुत गलत हो जाता है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों के परफॉर्मेंस पे पड़ा था कि महिला जब घर में ये गॉसिप तुम्हारा क्या चल रहा है, दोनों के घर में झगड़े होने लगे उसके हस्बैंड के साथ, तो कहीं ना कहीं घर में झगड़े होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑफिस में आता ही है। और ऑफिस की वजह से झगड़े हो रहे थे, तो महिला कहीं ना कहीं सोच भी रही थी कि अभी मैं छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि वो सीनियर लेवल की काफी एक्सपर्ट महिला थी। तो कंपनी को एक, अगर ये गॉसिप बंद नहीं होती, अगर वो कमिटी नहीं होती और वो कंप्लेंट नहीं होती, तो वो शायद महिला छोड़ चुकी होती या लड़का वो छोड़ चुका होता। तो वो कंपनी को लॉस होता था, क्योंकि दोनों ही एफिशिएंट वर्कर थे। तो यहाँ पे कंपनी का लॉस होते हुए बच गया। तो पॉलिटिक्स होना जरूरी है, ताकि पॉलिटिक्स कई बार मेरा मानना है अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स है तो वो कंपनी का ग्रोथ लाती है, बट ये नेगेटिव और गंदा पॉलिटिक्स है जो कहीं कंपनी को डुबाता है। कई बार ना मैम कंप्लेंट फॉल्स भी हो सकती है, मतलब बराबर है, पॉश एक्ट इज फॉर न्याय मिलने के लिए सबको, बट कई टाइम पे कुछ पॉजिटिव, मतलब बोलते हैं ना ऐसे कि फॉल्स कंप्लेंट हो सकती है कि चाहिए किसी बंदा या बंदी को कि चलो ना ऐसे ही मजे ले ले किसी के, किसी का, बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में ये चीज है कि मेरे को तेरे को बर्बाद होना देख के अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकली, बट हो सकता है। तो उस फॉल्स कंप्लेंट के लिए कैसे पॉश काम करता है? झूठी कंप्लेंट मतलब झूठे लोग। पहले तो ये बताना चाहूंगी कि झूठी कंप्लेनों का परसेंटेज है ना बहुत कम है, कि बहुत ज्यादा नहीं है। कई बार ऐसे से लग रहे थे महिलाएं इसका दुरुपयोग करेगी। हाँ, कायदे का दुरुपयोग होता है, कई महिलाएं करती भी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई महिला नहीं करेगी, तो होता है। तो जहाँ पे अगर फॉल्स कंप्लेन है तो यहीं पे हम लोग जब बायलॉज लिखने में हेल्प करते हैं किसी कंपनी को, के तो उस बायलॉज में हर बहुत छोटी छोटी चीजें हम ध्यान में रख के वो बायलॉज बनाते हैं, ताकि पहले तो कोई झूठी कंप्लेंट कर ना सके, और कर सके तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी पनिशमेंट क्या करना है वो रिटन हो, ताकि वो वापस वो महिला वहां पे जाके कहीं और जाके उसकी कंप्लेन करे, एफआरआई करे, ये करे कंपनी को बदनाम करने की। क्योंकि जिसने अगर फॉल्स कंप्लेन की है उसके दिमाग में उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो चीजें न होने के लिए हम लोग बायलॉज इस तरह से कंपनी को लिख के देते हैं, ताकि वो आगे ना बढ़े। पहले तो कोई कंप्लेन करने की सोचे नहीं, अगर कंप्लेन की है तो बायलॉज में लिखा हुआ है, ताकि इंटरनल कमिटी भी जो भी निर्णय ले रही है वो कहीं एकदम न्यायपूर्ण निर्णय, तटस्थ निर्णय बनता है, और उसकी वजह से वो आगे कंप्लेन नहीं कर पाती है। तो ये न्याय की बातें हैं, कंपनी की रेपुटेशन की बात है, बिजनेस की बात है। तो हम जहां पे भी जाते हैं तो कोशिश यही रहती है कि इस तरह से सारी चीजें करें कि कोई फॉल्स कंप्लेन ना कर सके। हाँ, फॉल्स कंप्लेन है तो कंपनी ने क्या बायलॉज लिखे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पुरुष चाहे तो
वहाँ पे अगर उसको सेटिस्फाइड नहीं है तो वो वहाँ जाके पुलिस कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। ऐसे केसेस मैंने एक केस पढ़ा था जहाँ पे पुरुष के ऊपर फॉल्स एलिगेशन था और वो कोर्ट में जाके न्याय लेके आया था और वहाँ पे वो महिला को काफी अगर मीडिया में आया हुआ ये केस है तो वहाँ पे महिला को फिर बाद में पेनल्टी जॉब लॉस हो गई और जब इस तरह से जॉब लॉस होती है तो कहीं वापस कहीं जॉब मिलता भी नहीं है। राइट, और ये बायलॉज है वो हर एक कंपनी के अलग अलग रहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। Yes. उनको मद्देनजर रखते हुए उनके जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ओके उसको ध्यान में देते हुए ये बायलॉज बनते हैं। अच्छा, बिकॉज इट वाज नाइस, बिकॉज मुझे लगा कि बायलॉज सबके लिए सेम रहते होंगे। बायलॉज थोड़ी एंड सबके लिए सेम है, बायलॉज सबके लिए। हाँ, Bylaws- कंपनी भी अपने बायलॉज अपने हिसाब से बनाती है, अपने एम्प्लॉइज को मुद्दे रखते वो बनाती है। कंपनी जैसे कि हर एक कंपनी के इंटरनल बिजनेस अलग है, तो जिस तरह से बिजनेस है और एम्प्लॉय किस तरह से आते हैं उसके हिसाब से उसके बायलॉज बनते हैं। सो सम बायलॉज कॉमन रहेंगे एंड देन सर्टेन बायलॉज इज एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है। कोई कंपनी बोलेगी कि छोटा सा भी होगा तो मैं इसको पेनल्टी करूंगा, उसको निकाल भी दूंगा, और कोई कंपनी बोलेगा मैं वार्निंग दूंगा। इट्स ऑल डिपेंड्स अपन कंपनी को किस तरह से लेना चाहती है, सीवियरिटी क्या है। तो बहुत सारी चीजें पैरामीटर्स होते हैं कि हर एक कंपनी अगर कोई सीवियरिटी पे ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं मैं छोड़ दो, एक्सक्यूज कर दो। और कोई कंपनी बहुत छोटी सी उसके ऊपर उसको पेनल्टी पे निकाल भी नहीं सकती है। तो इट प्रोटेक्ट्स जस्टिस की बात है और इसीलिए तो कमिटी होनी चाहिए, एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए, बायलॉज लिखे होने चाहिए ताकि पॉश एक्ट 100% अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए और न्याय सबको मिले और कंपनी का वर्क और एथिक्स, कल्चर और ब्रांड और बिजनेस किसी पे उसका इम्पैक्ट ना हो। मैम एक और अलग क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि किसी का भी हो सकता है क्वेश्चन, कि हैरेसमेंट जो होती है ओके, इफ इट इज हैपेंस इन कैब व्हाइल गोइंग विथ योर फीमेल और मेल एम्प्लॉई ओके, व्हाइल गोइंग फॉर अ मीटिंग और यू नो एट समवेयर योर एम्प्लॉइज आर अकम्पनिंग यू एंड वहाँ पे जब भी हैरेसमेंट होती है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो एक्ट के तो एक्ट के अंदर ऑफिस की डेफिनेशन ऐसे बताई गई है कि विद इन द 4 वॉल एंड फॉर द कंपनी वर्क। कंपनी वर्क ऑल्सो मीन्स कि मैं कोई पर्सन मार्केटिंग का है तो वो 4 दीवारों में तो बैठने वाला नहीं, ऑफिस में बैठने वाला नहीं है। मीटिंग करनी है तो आपको ऑफिस से बाहर जाना पड़ेगा। आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, हाँ, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेफली घर पहुंचे। तो ये सारी जगहों पे आप ऑफिस के प्रीमाइसेस में कहीं पे नीचे गए हैं और किसी थर्ड पर्सन ने आपके साथ कर दिया, नॉट बिलोंग टू द ऑफिस, तो ऐसे सब चीजों में कंपनी ये एक्ट वहां पे काम पे आता है। और कोई थर्ड पार्टी ने किया, अभी ऑफिस में कोई एक पर्सन, डिलीवरी बॉय आ गया और उसने कुछ कर दिया, क्लाइंट भी आ सकता है, क्लाइंट आया, डिलीवरी बॉय कुछ भी आया, जो वो कंपनी का एम्प्लॉय है ही नहीं, अगर उसने कुछ ऐसा किया। इसीलिए मैं जब बोल रही थी कि 10 से कम भी है तो आप लोगों ने एटलीस्ट एक पॉश का अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। कंपनी ने समझना चाहिए कि मैं अपने एम्प्लॉय को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो एक्ट काम करेगा आपके बायलॉज के अंदर के हिसाब से। आप पहले कैसे वो इसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये पूरा डिटेल बायलॉज लिखता है, ताकि आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये सिचुएशन में क्या क्या, अलग अलग बहुत सारी सिचुएशन है। आपने जैसे एक सिचुएशन मुझे पूछी है, तो ये बायलॉज लिखना ही ज्यादा जरूरी है। और कई बार हम किसी कंपनी को बिलोंग ही नहीं करते हैं। ये आउट ऑफ अ पॉश एक्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं एज ए इंडिविजुअल कंसल्टेंट काम कर रही हूँ या एज ए वुमेन में कहीं पे काम कर रही हूँ और कहीं पे मेरे साथ कुछ हो जाता है, मैं उस कंपनी को तो बिलोंग नहीं कर रही हूँ, उस कंपनी में गई और मेरे साथ कुछ हुआ, मैं वहां पे कंप्लेन कर सकती हूँ कि आपकी कंपनी में आई तो मेरे साथ कुछ हुआ, तो वो एक्ट वहां पे मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। अगर वहां पे कुछ नहीं हो सकता है तो मैं गवर्नमेंट का स्टेट वुमेन्स राइट कमीशन है, वहां पे जाके कंप्लेन कर सकती हूँ, FRI कर सकती हूँ कि ये कंपनी में गई और मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कुछ पॉश टैक्स के बाहर की बात करूंगी। अगर कोई महिला, हम लोग कभी कहीं रास्ते पे जा रहे हैं या हमारे साथ किसी कोई अनजान इंसान ने हमारे साथ कुछ कर दिया है ऐसा, तो ऐसी स्थिति में अगर हम पॉश के बारे में अवेयर है
तो हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों की कंप्लेंट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, या तो स्टेट वुमेन हेड कमीशन है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। स्टेट की भी अपनी पॉश कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सिटी लेवल की अपनी पॉश की कमिटियां हैं, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉश एक्ट दो तरीके से होता है, एक तो आप डायरेक्टली कंप्लेन करो, एफआरआई वगैरह करो, या तो आप पॉश की जो गवर्नमेंट की कमिटी है, विलेज लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सिटी लेवल, वहां पे कलेक्टर लेवल पे, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो अंडर द पॉश। तो महिलाएं अपने आप को, अगर मैं कोई कंपनी में काम नहीं कर रही, डजंट मीन कि मेरे पे पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता है। पॉश एक्ट हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैम, आज हमारे पॉडकास्ट को बहुत सारे सीईओ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सुन तो रहे होंगे, ओके? और इसी चीज़ को मेरे को एक सवाल करना है कि ये चीज़ लोगों को हेडेक लगती है, कंप्लायंसेस, फिर पॉश, फिर वो ट्रेनिंग लेना, तो ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? आप ये बोलते कि कुछ शॉर्टकट है क्या? हाँ, आप ये पूछना मतलब चाहते हाँ, हैं? शॉर्टकट कुछ, क्योंकि ये जो जैसे गवर्नमेंट के कोई भी कायदे कानून हो, वो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा, फिर लोगों को वो थोड़ा सा बहुत ये लगता है कि लाइक बहुत सारी चीजें हेडेक है, ये सब चीजें नो डाउट मैंडेटरी तो है ही, करनी तो है। हाँ, तो शॉर्टर वे में बता दीजिए आपकी क्या हो सकता है। आपका क्वेश्चन शॉर्टकट का है, बट मेरा आंसर डिटेल में है। नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले कहा था कि पॉश एक्ट इम्प्लीमेंटेशन आपका स्टाफ की वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर काम करता है, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, टीम बिल्डिंग, उसके ऊपर काम करता है। तो जिससे बिजनेस में फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो आप सोचिए। सेकेंड, ब्रांड इमेज, स्टाफ रिटेंशन, बिजनेस ग्रोथ, ये सब अगर मिलता है पॉश एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, डिटेल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो, अगर आपने चेकलिस्ट बना दी और रिपोर्ट फाइल कर दिया और आपकी कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे रिसेंटली किसी ने बताया था कि हमारी कंपनी में तो कोई है ही नहीं, और जैसे ही वहां पे पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, तो पता चला कि ऑलरेडी पॉश एक्ट के अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद ही 4 केस आए तुरंत ही। तो ये मिथ है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, पर लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे करने का। कोई पता ही नहीं कि यहाँ पे कमिटी है, यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, जब तक पता नहीं रहता है। तो ये शॉर्टकट कोई भी चीजों में हम लोग, जब गवर्नमेंट के जितने भी लॉज है, सेफ्टी के रिलेटेड है या लेबर रिलेटेड है या पॉश एक्ट है, वो कहीं ना कहीं कंपनी की सुरक्षा के लिए है, अगर ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा अनुभव बता रही हूँ कि जहाँ पे हमने चेकलिस्ट कर दिया, तो वो इंसिडेंट होने के बाद एक बहुत बड़ा लॉस होता है, या इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया, उसका एक बड़ा लॉस होता है। तो सेफ्टी है या लेबर एक्ट है या कोई भी एक्ट है या पॉश एक्ट है, उसको एज रिटन इन द लॉज, अगर उसको 100% उसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा ही है। ये शॉर्टकट की बात करेंगे, हमेशा बोलते हैं ना कि शॉर्टकट कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है, तो मैं कहूंगी कि ये शॉर्टकट ना करते हुए डिटेल में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और एक बार इम्प्लीमेंट होने से हम लोग यही चाहते हैं कि वो वर्क कल्चर कैसे बन जाए, ये डे टू डे एक्टिविटी, ये टॉपिक ना रहे कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसको वर्क कल्चर बना दें। डे टू डे रूटीन में कैसा होता है, अगर सेफ्टी की बात करती हूँ या पॉश एक्ट की बात करूँ या लेबर एक्ट की बात करती हूँ, वो अगर डे टू डे रूटीन में वो सिस्टम बन जाता है, तो वो भारी नहीं पड़ता है, बट इट अल्टीमेटली ब्रिंग्स द बिजनेस इन मोर बेटर वे, ग्रोथ लाता है। तो ये कंप्लायंस किस तरह से करने चाहिए, मैम आप बताइए। जरूर। तो कंप्लायंस के लिए सबसे पहले जो कमेटी वगैरह फॉर्म होती है, उसके लिए हम लोगों की टीम जो है, हम लोग टोटली सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। हम कमेटी, आईसी कमेटी बनाते हैं, फिर उसके बाद हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं, फिर उसके बाद क्वार्टरली मीटिंग्स भी होते हैं, जो जहाँ पे जो एक्सटर्नल मेंबर है वो आके अटेंड भी करते हैं, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो या कोई भी उसका फायदा, गैर फायदा नहीं उठाए वो एक्ट का। तो हमारी जो रीटा मैडम है, वो डॉक्टर रीटा है, वो जाती हैं
एज ए एक्सटर्नल मेंबर, और वो सपोर्ट करती है। तो क्वार्टरली मीटिंग्स होने चाहिए जिनके बाकायदा मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स लिखे जाते हैं, और फिर ये सारे जो है एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर जनवरी 1 तक 31 जनवरी तक इनके रिटर्न्स भी फाइल किए जाते हैं। हाँ, तो विच इज़ वेरी मैंडेटरी हर एक कंपनी को। उसके अलावा शी बॉक्स करके एक ऐप है जहाँ पे हमको सारे डिटेल्स अपलोड करने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, एंड थ्रू शी बॉक्स वो समझते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि कौन सी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ये आईसी कमेटी बनी है, ये ट्रेनिंग्स हुए हैं, एवरीथिंग हैज टू बी अपलोडेड। वो अपलोड होने के बाद ही हमको वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कोई भी इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए। तो इनके अभी तो गवर्नमेंट ने सभी जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको बोला है कि ये शी बॉक्स में जितने भी रजिस्ट्रेशन है उनको जाके क्रॉस वेरीफाई करें कि ये जस्ट नाम के लिए ये लोग कमिटी फॉर्म कर रहे हैं या ट्रूली इनकी इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं, तो वो चेकिंग भी अभी स्टार्ट किए गए। तो आज अगर हम ये सेमिनार कर रहे हैं तो यही अवेयरनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए है बेसिकली, ताकि सिर्फ अपने आप को पॉश कमेटी में रजिस्टर करने से नहीं होगा, लेकिन जो अवेयरनेस आपको फैलाना है आपके एम्प्लॉयज के बीच में, वो भी बहुत मैंडेटरी है, वो भी बहुत जरूरी है, ताकि ये हेल्दी एनवायरनमेंट रहे हर एक इंडस्ट्री में। और दूसरी बात ये है कि ये पॉश कंप्लायंस ऑफिस है या तो ऑर्गेनाइजेशन है या हॉस्पिटल या स्कूल, ये कैसे पता चलता है? इज देयर एनी थीम? बिल्कुल। तो उसके अंदर आपको, जैसे ही आपकी पॉश कमेटी बनी है, तो आपके एंट्रेंस में जहाँ पे विजिबिलिटी हो, कोई भी एंटर कर रहा है, कोई भी आउटसाइडर एंटर कर रहा है, तो वहाँ पे एक विजिबिलिटी में एक बोर्ड लगता है जहाँ पे पॉश कमेटी के मेंबर्स के नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए जाते हैं, ताकि कोई भी आके कंप्लेन कर सके। कई बार अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग प्रोसीजर्स होती है एज़ पर देयर बायलॉज़। तो हम जब बायलॉज़ वगैरह सब लिखते हैं तो कंपनी के वर्किंग कल्चर वगैरह को सबको ध्यान में रख के लिख रहे हैं। तो जैसे मैम ने कहा कि सिर्फ रिटन फाइल नहीं करना है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जब इंस्पेक्टर आते हैं तो आपने अवेयरनेस प्रोग्राम में या कमिटी को कुछ बता दिया, कमिटी बना दी, ऑन पेपर बना दी या ऑन पेपर रिटन फाइल हुए, बट वो प्रश्न इस तरह से कुछ पूछ के जाते हैं कि वो पकड़े ही जाते हैं, बिकॉज उन लोगों के पास भी अनुभव है। और हम क्यों पकड़े जाने की बात करें, हम क्यों उसको एक टिक मार्क और कंप्लायंस का एक ये बात करें, क्यों हम ऐसा ना सोचे कि मेरे वहाँ आती हुई हर एक महिला सुरक्षित फील करे, मेरे वहाँ आता हुआ हर पुरुष को ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरे पे कोई फॉल्स एलिगेशन नहीं होगा, मुझे न्याय मिलेगा। हर एक महिला सोचे कि ये मेरी कंपनी है, मेरा घर है, जहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ। एग्जैक्टली। और ये जब दोनों सुरक्षित फील करेंगे, तब आपकी कंपनी में वो लोग अपना 100% देंगे, अपनापन फील लाएंगे। जब कोई अपनेपन से काम करता है तो ग्रोथ लाता ही है। तो आप इसको कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रोथ के लिए इतने जो स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग बनाते हैं, मार्केटिंग का बजट रखते हैं, पैकेजिंग का बजट रखते हैं, बहुत सारे बजट होते हैं, तो ये पॉश का बजट क्यों नहीं? एग्जैक्टली। वो टाइम भी है, इट्स अ टाइम इज मनी। तो उसके लिए आपने जितना भी टाइम दिया है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कंप्लायंसेस के लिए, बहुत सारी चीजें तो हम ही करके देंगे आपको, बट वहां पे जहां पे आपको टाइम देना है, वो टाइम बिजनेस लाएगा ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं, ग्रोथ लाएगा क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो एक सोच, नजरिया बदलेंगे तो अगर कंपनी सुरक्षित है, ऐसे ही हर एक कंपनियां इस तरह से लगाते जाएंगे तो हर एक महिला सुरक्षित फील करेगी। वो महिला कोई भी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी स्त्री मित्र हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी पोती हो सकती है, कोई भी हो सकती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक महिला को, भारत की हर एक महिला को कहीं पे काम करने जा रही है तो वहां पे वो सुरक्षित हो? और कहीं ना कहीं ये पॉश की अवेयरनेस प्रोग्राम से पुरुष को भी पता चलता है कि महिलाओं को क्या अच्छा लगता है और महिला को क्या नहीं लगता है। तो जो कैजुअली लेते थे, अरे किसी भी महिला के ऊपर हाथ रख दिया, अरे किसी महिला के ऊपर कोई भी गंदी कमेंट कर दी, उसकी बॉडी के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर, तो ये सब चलता है, उसमें क्या हो गया? ये नहीं चलता है। जब उसको भी पता चलेगा तो महिला के बाहर अभद्र व्यवहार बाहर भी नहीं करेगा,
तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षित समाज का निर्माण कर रहे हैं। जब समाज सुरक्षित होगा तब कहीं ना कहीं देश का भी प्रगति होगी। आपकी कंपनी की प्रगति, एक महिला की सुरक्षितता उस आपकी कंपनी की प्रगति लाती है, कंपनी की प्रगति देश की प्रगति ला रही है। और कहीं ना तो मेरा कहना है कि पॉश एक्ट, हम जब कहते हैं कि हम पॉश का एक कंप्लीट पैकेज लेके आ रहे हैं, तो हम आपकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और महिला सुरक्षा के साथ ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आई सिर्फ थिंक एक बात नहीं करनी। ड्राइव ओके फ्रॉम गवर्नमेंट। और मुझे सच्ची में मतलब बहुत अच्छा लगा इस चीज पे, क्योंकि कोई कोई चीजें पता ही नहीं थी जिसके ऊपर आपने हाईलाइट किया। और मुझे ना अभी और एक सवाल आपसे करना है। मैं आप आंसर करोगे और एक मैम भी आंसर कर सकती है, दोनों का अलग अलग आंसर। कि आपको क्या लगता है महिलाओं की चुप्पी कैसे तोड़ी जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उस हिसाब से आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी, जो मतलब जिसको कंफर्टेबल कराना हुआ? तो अगर किसी महिला को ऐसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है या उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो शी हैज टू ओपन अप। उसने वो हिम्मत करनी चाहिए और वो हिम्मत करके उसने बोलना चाहिए कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। और जब तक वो बोलेगी नहीं, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस जब कंपनी अपने वो सपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली वो खुद बोल सकती है सबके सामने कि नहीं, ये मेरे साथ हुआ है करके। अगर कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर वो चुपी रहेगी। उसको यही लगेगा कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे ऊपर ही लालचन आ जाएंगे। राइट। तो ये जो जब हम कमिटी बनाते हैं, ये जो फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो अपने आप वो लेडी में आ जाता है कि भाई अभी कोई तो भी है जो मुझे सिक्योर कर सकता है। यस मैम, और आपका आंसर? मैं एक What अलग you want to say to this woman? मैं एक अलग तरीके से बात करूंगी कि जब महिला को पता है कि क्या क्या चीजें मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है, जब हम अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं तो उसे पता चलता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये मैं एक्सेप्ट, कहीं ना कहीं मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, बट मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसकी जब वो क्लैरिटी आती है तब वो, और यहाँ पे जैसे एक प्लेटफॉर्म भी दिया गया है कि तुम्हारी क्लैरिटी है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो बताओ। बताने का तरीका भी बताया गया है कि जाके उसके साथ झगड़ा करो, मारो, पीटो, गाली गलौज करो, ये नहीं। एक तरीका बताया कि यहाँ पे जाके कंप्लेन करो। तो वो ग्रेसफुली चीजें, किसी को सामने जाके बुला रहे तू तो ये है, तू तो वो है, ये झगड़ा करके वातावरण दूषित हो जाता है। उसकी जगह पे एक वातावरण में एक हार्मनी लाने के लिए कंप्लेन कमेटी बनाई, और वो सारी चीजें बहुत प्राइवेसी से होती है, दोनों की डिग्निटी का बातें होती है। तो एक प्लेटफॉर्म भी है जो डिग्निफाइड भी है और कंपनी के माहौल को भी नहीं बिगाड़ता। अगर किसी ने, दो लोगों ने लड़ाई कर दी खुल्लम खुल्ला, तो कंपनी का माहौल दूषित हो जाता है। तो और यही महिला, जब मुझे पता है कि क्या सही एक्सेप्ट कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, कहीं बाहर जाती है तो वहां पे भी आवाज करेगी। क्योंकि कहीं मेरे साथ कुछ बाहर गलत हो रहा है, किसी महिला के साथ बाहर गलत हो रहा है, उसकी इम्पैक्ट भी उसके कंपनी के कामों में पड़ती है। अगर आज कोई मेरे साथ कोई गलत व्यवहार हो गया तो मैं कहीं पे भी मीटिंग में जाऊंगी तो कहीं ना कहीं वो इतना गुस्सा रहता है कि इसने मेरे साथ क्यों किया। मैं एक महिला हूं तो मेरे साथ कभी होता है, किसी ने मेरे को अनटच कर दिया तो कहीं ऐसा, अरे मैं इसको थप्पड़ क्यों नहीं मार पाई, मैं उसके ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं कर पाई। तो ये जब आता है तो यहाँ पे हम, क्या हमारा रिएक्शन होना चाहिए, किस तरह से हमें उसे हैंडल करना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट ना हमारी कंपनी पे पड़े ना हमारे घर पे पड़े। हम महिलाएं बोलती कि कहीं पर हम बाहर का गुस्सा आता है ना बच्चों पे निकाल देते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। घर वालों पे निकाल दिया, वो भी गलत है। बट एक ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कितना वातावरण में फर्क आ जाएगा। पहले तो लोग गलत करने से सोचेंगे और यहाँ पे आवाज उठाने की हिम्मत मिलेगी। और मैं हर एक महिला को, आज की महिला को कहना चाहती हूँ, पास्ट में क्या था, भूतकाल में क्या था, वो मैं नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन आज समाज बदल चुका है। महिलाएं अगर अपना आवाज उठा रही है तो कोई ऐसा नहीं बोलता है कि यही गलत होगी, इसकी रेपुटेशन क्या होगी, ये आज का समाज नहीं बोलता है। भूतकाल का बोलता था कि तुम ही गलत होगी, तुम कैसे कंप्लेन कर सकती हो। नहीं, अभी समाज बदल गया है। आपकी सुरक्षा के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, और ये समाज एक्सेप्ट करता है, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है पॉश एक्ट।
एग्जैक्टली। और वैसे ही अगर आप पॉश एक्ट कंपनी में नहीं है, मतलब वो कंपनी का कंप्लायंसेस में नहीं है, जैसे 1-2 पीपल कंपनी है, 3 पीपल कंपनी है, तो वहां पे पॉश एक्ट इम्प्लीमेंटेशन का मैंडेट नहीं है। बट उसके लिए भी आप कहाँ के कंप्लेन कर सकते हो, हमने पॉडकास्ट में बताया है। गवर्नमेंट के और कौन से जगह है जहाँ पे कंप्लेन हो सकती है, तो आवाज उठाइए। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा, और जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपना 100% भी नहीं दे पाएंगे। तो देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा में इतनी ही जरूरी है। और पॉश एक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम पुरुष के लिए अन्याय कर रहे हैं, हम पुरुष के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये मिथ भी निकाल दीजिए कि मैं नहीं, कहीं किसी पुरुष को मैं एलिगेशन करके उसको फंसा सकती हूँ, ये भी नहीं हो सकता है। और पुरुष को भी यही संदेश, कि अगर कोई पुरुष सुन रहा है, हमारी सुरक्षा, हमें कंफर्टेबल फील करवाना, हमारे साथ डिग्निफाइड वर्तन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम आपके साथ वही कर रहे हैं कि कोई महिला आके किसी पुरुष को 99% कहीं पे भी टच नहीं करती है। रास्ते पे आते जाते कहीं कोई आके धक्का मार के गया, कहीं पे हाथ लगा के गया, कोई महिला ऐसा नहीं करती है आपके कोई भी प्राइवेट पार्ट के ऊपर। आप भी मत कीजिए। तो ये पॉश एक्ट के जरिए हम यही एक संदेश देना चाहते हैं, जैसे हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम आपको डिग्निफाइड तरीके से देखते हैं, इक्वली हम भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमें रिस्पेक्ट करो, डिग्निफाइड वे से देखो, नजर से, शब्दों से और वर्तन से या एक्शन से, हर जगह से। लेट्स ब्रिंग अ सेफ्टी फॉर ईच अदर। So other than Posh, how your company, your organization help in other aspect as well? If you can explain to us. So basically, we are a labor law consultant. So all the laws related to labor and the organization, we help. We are like a bridge in between them, and we help. Like we do payroll, we do PF, ESIC, professional tax. So these are all the compliances part. Apart from that, there are 19 labor laws which we explain to the client, and we help them. तो कोई भी इंस्पेक्टर आता है, कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे फैक्ट्री इंस्पेक्टर है या फिर लेबर इंस्पेक्टर है, शॉप एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स है एज पर लॉ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, वो सारा हम हेल्प करते हैं कंपनीज को प्रोवाइड करने के लिए। सो दीज आर द एडिशनल सर्विसेज व्हाट वी गिव आवर क्लाइंट्स। उसके अलावा हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स देते हैं, उनका जो एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है वो सारे भी हम देते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। Totally compliance with Yes. everything. फुल कंप्लायंस का पैकेज है हमारे पास। कंपनी को अगर कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू कंप्लायंस, वी कैन हेल्प देम। Diana ma'am, since how long you are doing this in this industry? So from 2007, as a business entrepreneur, I am in this organization. I have around 200 plus clients which I'm handling right now. Yes, and I have 2 offices. One is in Boisar and one is in Vasai, with the strength of 12 employees. तो काफ़ी लोगों को हम हमारे सर्विसेज देते हैं। और 2007 से जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो अभी भी हमारे पास है। आई कैन से प्राउडली कि जो शुरू में मुझे 5 क्लाइंट्स मिले थे, अभी भी हम उनको सर्व करते हैं। Even I am proud of you because you are doing so good for लोगों ने, तो जो भी कॉर्पोरेट के लिए आप दे रहे हो, पॉस्ट से लेके लेबर लॉ से लेके, okay, everything under one roof, I think. Yes. Very commendable. And how about you, ma'am? तो एडिशन टू द डायनामैम सर्विसेज, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें हेल्थ रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन रहता है, कि फर्स्ट एड पॉलिसी है, मेडिकल एंड एक्सीडेंटल इमरजेंसी जो लेबर लॉ में कहा गया है, या आप कोई ISO सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैंडेटरी रहता है कि आपके पास एक फर्स्ट एड की टीम होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ फर्स्ट एड की टीम ना करके, वो एक्चुअली बीइंग अ डॉक्टर, जब मैंने देखा था कि लोग फर्स्ट एड किस तरह से करके आते हैं, नहीं करके आते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीन हैविंग अ ट्रेन्ड पीपल ओवर देयर, तो मैं कंप्लीट पैकेज पॉलिसी लेके इम्प्लीमेंटेशन का, ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन का, वो पूरा फर्स्ट एड का, फायर सेफ्टी है, बिहेवियरल सेफ्टी है, उसकी ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है जो मैं करती हूँ। एडिशनली ट्रेनिंग पार्ट में हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, जैसे कि
वुमेन्स डे आया तो वुमेन सेफ्टी या वुमेन्स हेल्थ इश्यू है, मेंस डे आया तो मेन हेल्थ इश्यू है, हाउ टू कीप योर वाइटल ऑर्गन सेफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, हाउ टू प्रिवेंट कैंसर, मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वेरियस टॉपिक रिलेटेड इसके ऊपर करती हूँ. एडिशनली एज अ होम्योपैथ आई सी द पेशेंट्स ऑल्सो. और अभी गवर्नमेंट ने जो 4 कोड्स लाए हुए हैं उसमें हेल्थ चेकअप इज बिकम मैंडेटरी. हाँ, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को whoever एम्प्लॉइज आर 40 एंड अबव उनको मैंडेटरी ईयरली हेल्थ चेकअप देना जरूरी होता है. तो दैट इज वन मोर पॉइंट विच डॉक्टर रीटा हैंडल्स. yes. Oh, very nice. Means being a doctor, you are giving one kind of a solution. Like जो भी पेशेंट है उनको भी, जो भी कॉर्पोरेट से उनको भी. Yes, absolutely. Preventive health and early response. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर कंपनियां हेल्थ चेकअप वगैरह कर रही है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के एम्प्लॉय की हेल्थ इश्यू है उसके जनरल अगर हम टॉपिक पे बात करेंगे, उनको अवेयरनेस लाएंगे ताकि वो प्रिवेंटिव एक्सपेक्ट के ऊपर काम कर सके. और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं 32 इयर्स का मेडिकल एक्सपीरियंस लेके आ रही हूँ कि आज की डेट में बहुत सारी सोशल मीडिया की रील्स जब मैं देखती तो मैंने बोला ये कहाँ से आया, वही एक नई मेडिकल बुक लिखने की ज़रूरत है क्या. तो ये जो रॉन्ग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हमारे जैसे डॉक्टर जाके बात करते हैं तो वी ब्रिंग द ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन, ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूव्ड. और प्रूव मतलब हमारे मन से नहीं होता है. देयर आर ऑथेंटिकेटेड जर्नल्स जो सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं है, वेरी प्राइवेटली रिटन, और इट इज ओनली अवेलेबल टू द मेडिकल डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड. तो वहाँ पे जो रिसर्च होते हैं, हमारे पेशेंटों का अनुभव है, वो का निचोड़ मैं जाके ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम में देती हूँ, ट्रेनिंग में देती हूँ, ताकि लोग इजीली उसको इम्प्लीमेंट करें. थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली पेशेंटों को बताया है, वो प्रूव हो गया. अलग अलग पेशेंट के ऊपर अलग अलग चीजें बताई और वहां से वो लोग ठीक हुए हैं. उसका एक जस्ट है, वो उनको बताते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि व्हेन दे आर हेल्दी they will give you better performance, better productivity, better growth. So कहीं ना कहीं हम कंपनी की ग्रोथ की और बिजनेस कंटिन्यूटी की बात करते हैं. अगर देयर आर इनफ रिसर्च विच सेज के हेल्थ की वजह से इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कंपनीज प्रॉफिट. तो हम अगर आपका एम्प्लॉय हेल्दी है, सिक्योर है, सेफ है, कंपनी के पास हेल्थ रिलेटेड कंप्लायंस, लेबर लॉ रिलेटेड या सेफ्टी रिलेटेड ये सारे कंप्लायंसेस 100% इम्प्लीमेंटेड है एज इट इज बीन सेड इन द लॉ एंड एज इट इज रिक्वायर्ड. तो ये सॉल्यूशन हम आपको देते हैं. नो टिक मार्क प्लीज, लेट्स मी हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट ताकि उसके फायदे हो. आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज जो मैंने बोला था, यू बोथ आर लाइक सुपर वुमन, सो रियली यू हैव अ सुपर पावर एंड यू आर वॉरियर. ओके, बिकॉज जो हमारा समाज है, समाज मतलब समाज में सब आया, कॉर्पोरेट से लेके हॉस्पिटल से लेके जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं. एंड रियली इट्स बीन अ वेरी नाइस एंड वेरी ग्रेट थिंग यू वुमेन्स आर डूइंग. मतलब बहुत अच्छा लगा ये देख के. एंड रियली what I can say, मतलब बोलने के लिए शब्द कम पड़ेंगे because you have that kind of experiences, so you are implementing those, you know, in your career, or you can say whoever needs your guidance, you are implementing it. So really मतलब बहुत खुश हूँ मैं आज, मतलब ये सब सुन के what you are doing. एडिशनली राधी फाउंडेशन जो मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया है जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंटल इमरजेंसी में जो गैप है रिस्पॉन्स टू द हॉस्पिटल के बीच में, वो हम कहीं ना कहीं उसको एड्रेस कर रहे हैं. तो सिर्फ हम कंपनियों के और पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे अगर पॉलिसी लेवल पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं पे गैप है वो भी एड्रेस कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग एज अ टीम, एज अ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जो सिर्फ टिक मार्क नहीं बात कर रहे हैं, शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट करने से कंपनियों का, समाज का फायदा हो, जो सस्टेनेबल हो, हम वो सोल्यूशन देना चाहते हैं आपको. Right. Thank you for coming to our podcast that is The Influencer.
And even we thank you, Amrita. It was really nice session, and we really thank you from the bottom of our hearts that you have given your time for us. No, ma'am, it is not about time. It is about your time because ऐसे जो underrated topic है और जो खुद कॉर्पोरेट्स को नहीं पता, जिन जो 10 एम्प्लॉइज आप जो बोल रहे हो उनको नहीं पता, कोई छोटा सा हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, कोई छोटा सा करियर जो आज बड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है, ये छोटे छोटे जो चीजें हैं जो कल बड़ी बन सकती है. Right. So you both are making aware of it, and I'm really thankful to you. थैंक यू अमृता जी फॉर गिविंग अस अ टाइम. आपकी पॉडकास्ट का जो सीरीज है उसका हमें पार्ट बनाया, उसके लिए थैंक यू. Thank you so much. और कहीं आपकी माध्यम से हम अपने थॉट प्रोसेस शेयर कर पाए, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और हम क्यों डेप्थ की बातें कर रहे हैं, हम क्यों टिक मार्क की बात नहीं कर रहे हैं, जो डिफरेंस समझाने के लिए आपने हमें जो मौका दिया, उसके लिए थैंक यू Thank सो you मच so फ्रॉम much. बॉटम ऑफ आवर हार्ट. Welcome, ma'am. Thank you so much.